Hello dear friends, today we will discuss the lecture of slope deflection methods. Today's is second lecture of the slope deflection method. Previous lecture we will study about the relationship between dear friends slope, deflection and radius of curvature. The equation is this types m is equal to ei d square y by dx square. This equation you are a proof that how to be solved and which steps can be conducted. This prove the equation. Today we will study about the details methods of slope deflection method at a point. The which methods to be find the slope and deflection at point. The mainly dear friends our syllabus detail cover of these methods first of all is double integration method. Double integration method means the first of all for example ei d square y by dx square is equal to mx. The first integration is ei into dy by dx and here is m मोमेंट एट पर्टिकुलर एक्स तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन प्लस c1. सेकंड इंटीग्रेशन ei into y is equal to first integration plus second c1 x plus c2. So this is the double integration method. The first integration is given to slope and second integration is given to deflection. Today will this point are detailed description and detail the study of this lecture double integration method. Second method is dear friends is double integration method is also known as Maclaurin method. Second method is moment area method. Third one is conjugate beam method. And fourth one is strain energy concept, otherwise unit load method. Is all four methods. Unit load methods is also studied in strain energy concept. The study in the next chapter, but these four topics are covered in this chapter, and every lecture we will discuss about the every methods with depth of knowledge and deeply how to solve the different types of the structural problem. Dear friends, the first of all today we will discuss about the double integration method. The double integration methods is brief in this method. First of all, ei d square y by dx square is equal to mx is this equation of the relationship between slope, deflection and radius of curvature. The first integration is given to slope and second integration is given to deflection. The first of all today we will discuss some proofable how to find slope and deflection for cantilever beam with point load at free end. तो आपको क्या बता गया है
The first of all is cantilever beam. The Lord applied the free end. Lord applied the free end W kilo Newton. This length is also is L meter. Okay, dear friends. This point is A point. This point is B point. First of all, we will find out the moment at x distance. Here is I studies this backside of the structure. This distance is x distance for assume. So here you are find the moment at x distance. The load is downward direction. The total load is force into perpendicular distance x. But this is downward direction, so sign conversion is negative. Here you are study in the EI d square y by dx square is equal to minus mx. Because this minus mx, all the deflection and slope are always in fourth quadrant. इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन बाय डिफॉल्ट लेते हैं. और हियर इज ऑल्सो इज माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कंसिडर कर सकता हूं मैं. W इंटू एक्स ई आई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. यहां तक पता चल गया फ्रेंड्स. अभी मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं. इंटीग्रेशन on the both side. तो क्या होगा, EI डी स्क्वेयर का क्या होगा, dy बाई dx. W इंटू एक्स तो क्या होगा, W एक्स स्क्वेयर बाई 2, उसका इंटीग्रेशन होगा प्लस C1. दैट्स इज इक्वेशन नंबर 1. Here is second integration on both side. So first of all, EI into y is equal to W x cube by 2 divided by 3, because the increase the denominator, this point is given to this, because you are studying x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 in mathematics. This formula is applied to here. Plus C1 into x, because C1 is given, and then constant term C2. Here I erase that because okay, this term is known as second term. यहां तक आपको पता चल गया होगा दोस्त. अभी क्या करना है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने ये दो टर्म के बाद अभी मैं ऐसा सोचूं कि मुझे ए पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है. तो याद रखना है आपको एट फिक्स एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर ऑलवेज 0. तो फिक्स एंड पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है. तो अभी मैं फिक्स एंड से टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से फिक्स एंड का, तो L, तो x इज इक्वल टू मैं L लू और डिवाइड बाई dx यानी कि स्लोप क्या होगा, 0. तो ये जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूं तो क्या आएगा देखो.
तो ई आई, ये रहा इक्वेशन, देखो मैं इसमें पुट कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, मैं ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू अभी पुट कर रहा हूं। अब देखिए, तो ई आई इंटू 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1। यहां तक पता चला। अभी ये तो ई आई इंटू 0 तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 प्लस C1। तो C1 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा। तो ये मुझे C1 मिला। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी सेम एज इट इज, में स्लोप डिफ्लेक्शन भी वहां पे 0 है। कहां पे? तो एट L, तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। तो इज पुट एन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ये रहा। प्लीज फ्रेंड्स, आप साथ में, जब भी मैं चला रहा हूं तो आप साथ में लिखते जाइए, तो क्या स्लाइड नहीं चेंज हो रही है तब आपको दिक्कत ना आए। तो डायरेक्टली मैं जो बताऊं वो आपको ध्यान में आ जाए। तो ई आई इंटू वाई, तो क्या लिखना है? ई आई इंटू 0, बिकॉज वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिर से डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6, तो यहां पे क्या होगा? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6। यहाँ पे C1 हमने फाइंड किया, क्या है? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स लिखा है, इंटू एक्स प्लस C2। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया? 0 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 2, because this x is also is L। ओके, तो क्या रहेगा? C2। तो मेरे को C2 फाइंड करना है। तो C2 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लाऊंगा तो क्या रहेगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। ये माइनस है तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये वाला सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6। हम सिक्स का एल्शियम लेते हैं, तो 3 टू ज़ा 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 6। तो 2 यानी कि 3। तो आंसर क्या आएगा? C2 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3। ये C1 और C2 की वैल्यू हम फाइनली इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या रहेगा आप देखिए, ई आई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, यानी कि C1 कितना आया था हमारा? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। क्लियर? तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3, एंड देन ई आई इंटू वाई, ये रहा वाला इक्वेशन, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स प्लस C2 कितना है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3। अरे सॉरी, डब्ल्यू, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गई मेरी, यहाँ पे डब्ल्यू एल क्यूब है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, दिस माय मिस्टेक।
एल क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, WL³/3। तो टोटल कितना आंसर आएगा, EI × Y। ये टोटल ये इक्वेशन मेरे को मिलेगा। तो दैट्स इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। डियर फ्रेंड्स, अभी हमको क्या करना है कि अभी मैंने थोड़ी बार पहले बहुत बताया था, एट फ्री एंड slope and deflection both maximum। तो यानी कि फ्री हैंड था, एक कैंटिलीवर बीम का फ्री हैंड है, तो फ्री हैंड पे क्या होगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अभी फ्री हैंड तो मेरा ओरिजिन हुआ, क्योंकि वहां पे तो x = 0 लेना है, सॉरी x = क्या लेना है, 0। तो dy/dx = dy/dx मैक्सिमम रहेगा। क्लियर। तो ये dy/dx मैक्सिमम है, तो ये मैं इक्वेशन नंबर जो भी लास्ट में हमने देखे इक्वेशन नंबर 3 में रख दू, ये वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, EI dy/dx मैक्सिमम, EI dy/dx मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x = 0 लेना है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, -WL²/2, 0 -WL²/2 बचेगा। तो टोटल एंड ऑफ द इक्वेशन हमको क्या सॉल्यूशन मिलेगा, dy/dx मैक्सिमम इज इक्वल टू -WL²/2। ये EI को मैं यहां से हटा के सामने लिख सकता हूं, तो क्या होगा, तो मैक्सिमम स्लोप मेरे को क्या मिलेगा, एट फ्री एंड पे, कहां पे, एट फ्री एंड। अभी मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो उसके लिए भी क्या होगा, x = 0, y = y मैक्सिमम। इक्वेशन नंबर हम 4 में डालेंगे इसको, तो क्या बचेगा, तो EI × y तो मैंने क्या हुआ, मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिखते हैं EI × y मैक्सिमम इज इक्वल टू WL²/6, WL³/6। अभी WL³/6 यहाँ पे, सॉरी x लेना है, तो x क्या रहेगा, WX³/6, तो x तो 0 हो जाएगा, एंड देन ये टर्म भी x 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, WL³/3, 0 -0 प्लस WL³/3। तो y मैक्सिमम कितना रहेगा, WL³, ये EI को मैं पहले से डिनोमिनेटर में डाल दूं तो कितना बचेगा, 3EI। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एंड पे कैंटिलीवर बीम एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये मिलेंगे मेरे को। तो आपको पता चल गया होगा। साथ में डियर फ्रेंड्स, नोट्स बनाते जाइए, तो क्या है, आपको कुछ दिक्कत आए तो आप साथ में रह के उसको सॉल्व भी कर सकेंगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप and deflection for cantilever beam with uniformly distributed throughout the span। तो ये सब बीम रहा हमारा, कैंटिलीवर बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। जस्ट सेकंड्स, ये से W kN/मीटर, ये टोटल लेंथ है L, दैट्स इज A पॉइंट, दैट्स इज B पॉइंट। क्लियर।
अभी मैंने बात कही थी कि हम x कहाँ से लेते हैं, the b point to define x, this distance, our x distance। तो यहाँ पे मुझे मोमेंट फाइंड कर दी है, तो मोमेंट एट x इज इक्वल टू क्या रहेगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया है w किलो न्यूटन पर मीटर, दिस डिस्टेंस इज x, तो उसका पॉइंट लोड क्या रहेगा w इंटू एक्स, और दिस डिस्टेंस इज x/2 तो डाउनवर्ड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, तो माइनस w इंटू x/2। तो टोटल क्या आंसर रहेगा, -wx²/2। तो सेम एज इट इज ये मोमेंट मुझे मिली। तो अभी जो हमारा इक्वेशन है EI d²y/dx² माइनस mx, उसमें हम रख देते हैं, ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो wx²/2 EI d²y/dx² हो गया। अभी हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, फिर से इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन, तो क्या रहेगा फर्स्ट इंटीग्रेशन, EI इंटू dy/dx इज इक्वल टू wx³/3 प्लस c1। ये रहा हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन। अभी हम लेते हैं सेकंड इंटीग्रेशन। सेकंड इंटीग्रेशन EI इंटू y wx⁴/6 4 × 24 प्लस c1x प्लस c2। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर वन, and this is question number 2। First of all is given boundary condition at fixed end। तो फिक्स एंड के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या रखी हुई थी, तो एट अ फिक्स एंड स्लोप is 0, x is equal to L, put in equation number 1। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, EI dy/dx, EI dy/dx क्या लेना है, 0 इज इक्वल टू wx³/6। wx की जगह पे क्या लेना है, L3/6 प्लस c1। तो ये क्या होगा 0, तो L3/6 प्लस c1, तो c1 क्या होगा -wL3/6। ये जो आंसर है उसको अभी साइड में रख करके हम y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L, पुट इक्वेशन नंबर 2। तो क्या रहेगा, EI इंटू y यहाँ पे रखा है wx⁴/24 WL⁴/24 plus minus, because the here c1 is minus WL3/6 into L plus c2। तो dear friends this is 0, WL⁴/24 minus WL⁴/6 प्लस c2। ये दो टर्म को हम सामने ले जाएंगे तो क्या रहेगा,
WL raised to 4 upon 6 minus WL raised to 4 upon 24 इज इक्वल टू C2। हम 24 का एल्शियम लेते हैं तो क्या रहेगा, 4 WL raised to 4 minus WL raised to 4 is equal to C2। 4 minus 1, 3WL raised to 4 upon 24 is equal to C2। तो 8 3 जा, तो C2 is equal to WL raised to 4 upon 8। क्लियर। तो ये मुझे C1 एंड C2 की वैल्यू आई, उसको हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। EI into dy by dx is equal to WL cube, sorry, W x cube by 6 minus WL cube by 6। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3 फॉर लेटेस्ट। एंड इक्वेशन नंबर 4, EI into y WX raised to 4 upon 24 minus WL cube by 6 into x plus WL raised to 4 upon 8। That is equation number 4. Here, dear friends, the maximum slope and deflection at free end, the free end x is equal to 0 and y is equal to y maximum, and dy by dx is equal to dy by dx maximum. Both term put in equation number 3 and 4th. Here, equation number 3, EI dy by dx, EI dy by dx, this is maximum term, here is put at equal to x is equal to 0, so wx cube by 6, x is equal to 0, this term is 0, minus WL cube by 6, yes, so that clear। तो EI dy by dx maximum is equal to WL cube by 6, this EI here is cancelled and given to here, so this is the maximum slope of uniformly distributed beam। Same as it is, y is equal to y maximum EI in equation number 4 equal to WL raised to 4, here is WX raised to 4, x is equal to 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है उसको, 0। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, प्रीवियस स्लाइड में देखा था L क्यूब बाई 6 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो भी क्या आएगा, -0 प्लस WL raised to 4 upon 8, WL raised to 4 upon 8, तो y maximum is equal to WL raised to 4 upon
8 EI, that is maximum deflection of uniformly distributed cantilever beam. So today's VBR studies the two importance parameter and importance proof of the uh, slope and deflection method. Dear friends, third one we will study is the next lecture. Uh, Continues this lecture. To please visit our YouTube channel and how to solve the difference of the slope deflection method, or dear friends any other problem or revise to any other things, to please contact me. This is my number 84016147226, and my second number is 8200859293. Myself, Professor Darshan Kanani. To please join me this channel and continuous follow. And this is live lecture. Here important to cover the wall over the structural analysis of part 1 to very carefully and prepare the notes, and very useful to in GPSC UPSC IS एग्जाम. नेक्स्ट लेक्चर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत धन्यवाद. थैंक यू ऑल ऑफ यू.